because they are vicegerent of the Prophet in the other words, أكرم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. Wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa. Wa sahbihi ulil hubbi wal wafa. وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العاظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصفته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلذة كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام وأئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسننا أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کے بال مبارک کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کلائی کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے دین کا غوث نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة الفجر فرض اللہ تعالی یقتضی بهذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. بنگال والے ہو یا انڈیا والے، حالت نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے. ڈربن والے آپ کہا میرا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف. لیبیا والے آپ کہا میرا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف. سویٹ والے آپ کہا میرا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف. 208 کنٹری ان دس ورلڈ اویلیبل ہے. ہر ملک کے مسلمہ کا کہنا ہے میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. خانہ کعبہ تیری دیوار، تیرے وجود، تیرے تقدس، تیرے عظمت، تیرے غلاف سے ایک سوال ہے کہ پوری دنیا تیری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے، پوری دنیا تیرا طواف کرتی ہے. مجدد ہو تیرا طواف کرتی ہے، غوث ہو تیرا طواف کرتی ہے، علماء ہو تیرا طواف کرتی ہے، فضلا ہو تیرا طواف کرتے ہیں، نقبا ہو تیرا طواف کرتے ہیں. خانہ کعبہ تمام دنیا کے انسان چاہے اللہ کے کتنے بھی وہ بڑے ولی ہو جائے وہ سب کے ساتھ تیرا طواف کرتے ہیں. اے کعبہ بتا، کیا تو بھی کسی کا طواف کرتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کے گرد چکر لگاتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کی طرف پھرتا ہے؟ تو خانہ کعبہ جواب دیتا پوری دنیا میرا طواف کرتی ہے. کسی ذات کا اگر میں طواف کرتا ہوں تو وہ شیخ ابو صالح کا بیٹا ام الخیر فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، بریلی کا امام. اس مومنٹ کی ترجمانی کرتے تو قلم سے کہتے ہیں لیکن سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی. حیوانات فی کل العالم داخل ہے مگر افضل پروڈکٹ پروردگار عالم نے انسان کو رکھا.
اور قرآن میں آیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان بگیسٹ اسٹرکچر پر ہے، لیکن یہی قرآن یہ بھی کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان. جس انسان کی میموری پاور کا یہ حال ہے کہ 100 ملین بلکہ بلین نیورونز ہیں مائنڈ کے اندر، صرف 100 بلین. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے اور 1 بلین 100 کروڑ کو کہتے ہیں. 100 بلین نیورونز اور 100 ٹریلین کنیکشن صرف مائنڈ کے اندر. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے. اور اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ انسان چل نہیں پاتا ہے، انسان اٹھ نہیں پاتا ہے، انسان بیٹھ نہیں پاتا ہے، انسان سوچ نہیں پاتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم چلتے ہیں؟ نہیں. اگر بگننگ میں چلانے والا موجود نہ ہو تو انسان چل نہیں سکتا. آج بھی 1 مہینے کے بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں تو وہ چلے گا نہیں. خرگوش میں چھوڑ دیں گے تو خرگوش کی ٹاکنگ کرے گا. اگر منکی میں چھوڑ دیں گے تو منکی کی ٹاکنگ کرے گا. اگر ڈاگس میں چھوڑ دیں گے تو ڈاگ کی ٹاکنگ کرے گا. خلق الانسان ضعیفا، رب قدیر نے سب سے افضل بنایا ہے، اور وہ افضلیت کی جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، اسے عقل کہا جاتا ہے. عقل کو میر سید شریف جرجانی نے 7 تعریفیں کی. اس میں سے ایک تعریف ہے عقل دل میں وہ طاقت ہے، وہ نور ہے جو حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچتی ہے. یہ عقل کی تعریف کی گئی ہے. اسی عقل کی وجہ سے انسان ڈیولپ ہوتا ہے، انسان بڑا بنتا ہے، اور بڑا بننے کے بعد بھی وہ انسانیت کے دائرے میں نہیں آ پاتا. اس لیے سم ٹائم سورج کی پوجا، سم ٹائم انسان کا مرڈر، سم ٹائم بیوی کا قتل، سم ٹائم بچوں کو زندہ دفن. اس لیے رب قدیر نے انسان کو انسانیت کا پتہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، 1,24,000. یہ صرف اور صرف انسان کی رشد و ہدایت کے لیے. اس 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں 315 رسول ہیں، اور 315 رسولوں میں 5 سب سے ٹاپ پر ہیں. اور ان 5 ٹاپرز میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ بدر کی کوانٹیٹی 313 ہے. جنگ بدر، اور جتنے صحابہ ہیں بعد میں بدری صحابہ سے افضل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب کوئی نبی نہیں آئے. لیکن سوال یہ ہے انسان تو کلیاچک میں پیدا ہوگا ہی نا. بنگال میں تو ڈیلی پیدا ہو رہا ہے نا انسان، انڈیا میں بھی ڈیلی پیدا ہو رہا ہے. جس طرح ماضی میں انسان پیدا ہو رہے تھے آج بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں. تو ماضی میں نبی آتے تھے، آج کون آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مجددین کا سلسلہ شروع فرمایا. پہلی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر عمر بن عبدالعزیز تشریف لاتے ہیں. دوسری صدی ہجری میں امام محمد بن ادریس شافعی نبی کا نائب بن کر. تیسری صدی ہجری میں نبی کے نائب بن کر امام ابو الحسن اشعری آتے ہیں. چوتھی صدی ہجری میں مجدد بن کر امام ابو حامد الاسفرائینی آتے ہیں. پانچویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر امام غزالی تشریف لاتے ہیں. چھٹویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر امام فخر الدین رازی تشریف لاتے ہیں. ساتویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر امام تقی الدین الدقیق تشریف لاتے ہیں.
8वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी तशरीफ लाते हैं। 9वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तशरीफ लाते हैं। 10वीं सदी हिजरी में नबी का नायब मुजद्दिद बनकर मुल्ला अली कारी तशरीफ लाते हैं। 11वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर मुजद्दिद अल-फ़सानी तशरीफ लाते हैं। 12वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर औरंगजेब अलैहि रहमत तशरीफ लाते हैं। 13वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तशरीफ लाते हैं। और 14वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम उलूम फुनून का जामिया बनकर परवरदिगार आलम ने लोगारिस्म का भी एक्सपर्ट बनाकर, बायोलॉजी का एक्सपर्ट बनाकर, मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनाकर, अर्दियात का एक्सपर्ट बनाकर, अफलाकियात का एक्सपर्ट बनाकर, नहव का एक्सपर्ट बनाकर, सर्फ का एक्सपर्ट बनाकर, इल्म तफसीर में एक्सपर्ट बनाकर, इल्म हदीस में एक्सपर्ट बनाकर, बल्कि न्यूटन का बाप बनाकर, आइंस्टाइन का दादा बनाकर, तमाम साइंसदानों जिसके सामने प्राइमरी और स्टूडेंट नजर आते, तिफले मकतब नजर आते, अल्लाह ने वो तमाम ताकत देकर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया है। इमाम अहमद रजा खान आप तशरीफ लाते हैं, तसर्रुफात की करवटें लेते हैं और देखते क्या है कि लोग साइंस के जरिए इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं। आपने साइंस में कलम उठाया और जरा साइंसी कारनामा को एक फहरिस्त में मुलाजा फरमा ले। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया दिया इमाम अहमद रजा खान है। 1908 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की इमाम अहमद रजा खान है। 1909 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान है। 1915 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की वाटर की 350 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान है। 1916 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिट्टी और पत्थर की बामे तयम्मुम में 311 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान है। 1919 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक पावर पर अल-कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर वमस्सकनाहुम कुल्ल मुमस्सक की से दलील लेकर न्यूटन और आइंस्टाइन का 5 दलीलों से जनाजा निकालकर बुदलान का कफन बनाकर ज़ेरे ज़मीन जिसने दफन कर दिया इमाम अहमद रजा खान है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हरकत जमीन के खिलाफ 105 दलीलें दी और फौजे मुबीन पर रद्द हरकत जमीन समेत 4 किताबें लिखी और दुनिया को बताया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसलिए कयामत तक हम सुन्नी माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से ये लिखने के लिए 24 घंटा तैयार है अहले सुन्नत की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए वो सिक्के बजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर गरीब नवाज, फैज़ाने हुज़ूर गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलाम जिलानी आजारी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानवर को अगर रास्ता बता दे तो वो डेली अप डाउन करता है। हमने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो मंडी से कपास बेचने के बाद बैलगाड़ी को तैयार करके रुख पर डाल देते, रात में चलते तो सुबह बैल अपने घर पे पहुंच के रुक जाता। लेकिन इंसान उससे भी कमजोर है। नबी आके सीधा करते, नबी के जाने के बाद फिर इंसान टेढ़ा हो जाता। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद
नौबत भैजा रसीद के रुए जमीन पर सबसे अच्छे इंसान की बात कर रहा हूं, सबसे अच्छे इंसान को लोगों ने कत्ल कर दिया। और दुनिया उस वक्त के सबसे अच्छे इंसान को ख्वाजा गरीब नवाज के नाना और दादा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाम से याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों की कमीनापंती देखी, और नबी के जमाने से ज्यादा फासला नहीं था, उसके बावजूद ये हाल था कि सबसे अच्छे इंसान इमाम हुसैन का कत्ल हो गया। और जिसने कत्ल करवाया वो दमिश्क में। अच्छा, कुछ लोग अभी यजीद के फॉलोअर्स भी है जिसका ये कहना है कि वो बेचारा कहां था करबला में। तो किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ए तीर चलाने वाला, तेरा निशाना कितना स्ट्रांग था कि दमिश्क में रह के तीर चलाया और करबला में निशाने पर लगाया। यकीनन यजीद था। कत्ले हुसैन के बाद बाज़ाब्ता अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा यजीद। यजीद ये शबाब पर शराब पीना जायज, बहन से निकाह करना जायज, बेनमाजी इमाम बनना जायज, जो मां बहन की गाली देता है वो भी इमाम बन सकता। ये सिस्टम किसने पास किया? ये फतवा किसने लॉन्च किया? यजीद ने। परवरदिगार आलम ने 2 नवंबर 682 ईस्वी अब्दुल अजीज की पीठ से एक बच्चा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से पैदा फरमाया। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद है। और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि यजीदियत का खात्मा किया है। जिसने भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोला उसको इधर बोला, कोड़े मार, इसको कोड़े मरवाते और उसके कहते थे 50 बार इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बोल के बता। कोड़े नहीं मरवाते, हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बोल। यजीदियत का खात्मा उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया। ये उमर बिन अब्दुल अजीज 2 नवंबर 682 पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद, जब खलीफा नहीं थे तो लग सही लाए 3000 दिरहम का कुर्ता। लेकिन जिस दिन खलीफा बने वो कुर्ता उतारा बैतुल माल में, बीवी के पूरे जेवर उतारे और उसको ऑप्शन दिया, यू हैव 2 ऑप्शन, one of them me, second of them your ज्वेलरी। या तो आप ज्वेलरी को रख ले या मुझे रख ले। मुझसे प्यार है तो ये सोने चांदी जेवरात को बैतुल माल के हवाले कर दो, और अगर जेवर से प्यार है तो मैं आपको आजाद करता हूं। वो कितनी अच्छी बीवी थी जो मेकअप से प्यार नहीं करती, कान में बाली से प्यार नहीं करती, नाक में झुमका से प्यार नहीं करती, पायल और जेवर से प्यार नहीं करती। उसने कहा, मेरे सरदार ये जेवर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको छोड़ दी तो ये जेवर सिर्फ 60-70 साल तक नसीब होंगे, और अगर ये जेवर को जूती के नोक पे उड़ाकर मैंने आपको सर का ताज बना लिया तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नती जेवर मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेवर को बैतुल माल के हवाले कर दिया, अपने कपड़े में उतार दिया और 3 दिरहम का कुर्ता खरीदा मार्केट से और वो पहनने लगे। 3 दिरहम का इतना अच्छा निजाम चलाया कि रूए जमीन पर कोई ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला मौजूद। हदीस का सबसे ज्यादा काम उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया। लेकिन एक सवाल है, उमर बिन अब्दुल अजीज है कौन जानते हैं आप लोग? ये मरवान का पोता है। ये मरवान कौन है? सबसे पहले कत्ले हुसैन का मशवरा मदीने में देने वाला मरवानी। सवाल, दादा इतना बड़ा कमीना मरदूद खबीस, पोता वक्त का मुजद्दिद कैसे? ये मां और बहनों के लिए स्पेशल दर्स। दादा इतना बड़ा कमीना के कत्ले हुसैन का मशवरा दे रहा, और पोता वक्त का मुजद्दिद, पहली सदी हिजरी का मुजद्दिद। हमने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते 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 एक बात समझ में आई। उमर फारूक आजम गश्त कर रहे थे, एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, मां। उमर फारूक आजम का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। मां ने कहा, बेटी अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आएंगे, मिला दे मिला दे।
اس بیٹی نے کہا ماں میں ان خاتون میں سے نہیں جو سامنے وفاداری اور پیٹھ کے پیچھے غداری کرتی ہے. قانون من حیث ہوا برابر ہے. نہیں ملایا دودھ میں پانی. عمر فاروق اعظم نے کہا شوڈ بی نوٹڈ دس ہاؤس. نوٹ کر لیا جائے گا. صبح مطالبہ کیا گیا, پتہ چلا گوالا نے اپنے بیٹوں میں سے کہا تم میں سے جو چاہے نکاح کرے. 22 لاکھ مربع میل کے راجا کا نام عمر فاروق اعظم ہے, یاد رکھیے. The Great Alexander 17 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا. عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم. ایک دودھ بیچنے والی کو اپنی بہو بنا رہا ہے. یہی سے پتا چلا جو کروڑ پتی ہے وہ اپنے گھر میں بہو کروڑ پتی, ملین پتی, بلین پتی کو نہیں ڈھونڈے. اپنے گھر میں بہو لائے تو لانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ باہر سے پڑی ہے کہ نہیں پڑی, کنزول ایمان پڑی کہ نہیں پڑی, دولت ہے کہ نہیں, دین ہے کہ نہیں, یہ دیکھ دین ہے کہ نہیں. گھر کا بہو بنا لیا. کس کو؟ دودھ بیچنے والی کو. دین کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے نہیں. اسی خاتون کے نواسے کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلا نواسا مجدد نانی کی وجہ سے. نانی اگر دودھ میں پانی نہیں ملائے تو نواسا وقت کا مجدد پیدا ہوتا ہے. آج بھی مالدہ ٹاؤن کلیاچک بنگال میں اگر نانی دودھ میں پانی نہیں ملاتی تو مجدد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. آج بھی وہ اللہ ہے جو مجدد پیدا کرنے پر قادر ہے. آج بھی وہ اللہ ہے. عمر بن عبدالعزیز یزیدیت کا خاتمہ کرتے ہیں, بہترین نظام چلاتے ہیں, اور آگے آئے ہندوستان کی طرف بڑھتے ہیں. جیل شباب پر, اور جو خلیفہ کی بات نہیں مانتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور خلیفہ کی بات کیا ہے؟ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نیا کلمہ لانچ ہوگا انڈیا میں, اور جانتے اس کلمہ کا کیا نام تھا؟ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ معاذ اللہ رب العالمین. سب لوگ بولے معاذ اللہ رب العالمین. شیعہ عالم نے اس کو پروموٹ کیا. یاد رکھیے گا, جس مذہب کو چاہے وہ باطل ہو یا حق ہو, گورنمنٹ سپورٹ کر دے تو بہت اسپیڈ سے آگے بڑھتا ہے. جیسے ابھی RSS بج رہے ہیں, جس بھی مذہب کو گورنمنٹ سپورٹ کرتا ہے. اکبر کے دین الہی کو خود راجا ہے مشورے دے رہا ہے ابوالحسن فیضی, شیعہ عالم. شیعہ کی ہمیشہ سے یہ چال رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی میں چلتے ہیں. اس کا پرسنل کوئی مذہب نہیں ہوتا, جس کی سرکار ہوگی وہی مذہب ہوگا. یہ سسٹم ہوتا شیعہ ہو. ابوالحسن فیضی نے یہ دین الہی کو چلانا شروع کیا. شباب پر ہندوستان کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں, کافر ہو رہے ہیں, نبی کے کلمہ کو چھوڑ رہے ہیں. سنت مصطفیٰ کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. اطاعت مصطفیٰ کلمہ مصطفیٰ کو ڈسٹروائے اور تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم نے 26 جون 1564 عیسوی میں سرہند کی دھرتی پر شیخ عبدالاحد کی پیٹھ سے ایک بچہ مجدد الفسانی کے نام سے پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجدد الفسانی نے تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا کہا اکبر, اکبر نبود, اکبر بود. کس نے کہہ دیا اکبر مسلمان ہے بھائی, وہ کافر ہے. لوگوں نے کہا ہاؤ ڈے یو, ہی از کافر, وہ کافر ہے. باضابطہ 9 رتن علماء ان کی تائید کر رہے ہیں اور سسٹم بنا رہے ہیں. مجدد الفسانی نے کہا سب کے سب واجب القتل ہے, چپالوس ہے, بکاؤ مولانا ہے, سب کو قتل کر دیا جائے. اکبر نے ڈھیل دیا. اکبر کے بعد جب جہانگیر آیا تو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا مجدد الفسانی کو. مجدد الفسانی جیل میں ہے, لیکن جیل میں جانے کے بعد رو نہیں رہے, افسوس نہیں کر رہے. مریدوں سے کہا مصلی لاؤ, قرآن شریف لاؤ.
الف لام میم سيقول تلك الرسل لن تنالوا المحصنات لا يحبوا واذا سمعوا ولو اننا قال الملو. صرف 3 مہینے میں پورے قرآن کا حافظ بن جاتے ہیں مجدد اہل فیصل. 3 مہینے میں پورے قرآن کا حافظ. اور جیل کے اندر ہی کافروں کے پاس جا کے تبلیغ کرتے تھے اللہ ایک ہے. یہ ہندوستان خواجہ کا ہے اور خواجہ نے بھی یہ کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں سے نیا آیا فتنہ؟ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، دین مصطفیٰ کے خلاف ہے. لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، کافر کو مسلمان بنانا شروع کیا، اور جو مرتد ہو گئے تھے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ 5000 سے زیادہ لوگوں کو گوالیر مدھیہ پردیش کے جیل ہی میں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا انہوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5000 سے زیادہ جیل کے اندر ادھر جیل میں ڈالا گیا. خانہ خانہ پنجاب سے، معبد خان پشاور سے، اعظم خان بنگال سے نکلے، اور یہ تینوں نے جہانگیر کو چیلنج کر دیا. جہانگیر ہمارے پیر صاحب کو آزاد کر ورنہ میدان میں آ جا لڑنے کے لیے. سوچے حکومت کس کی؟ جہانگیر کی. گھوڑے، نیزے، اسلحے سب کے سب جہانگیر کے پاس ہے. ہاتھی جہانگیر کے پاس ہے. لاکھوں کی تعداد میں فوج جہانگیر کے پاس. مجدد الفسانی جیل میں، اور 3 مرید نے لیڈنگ کرتے ہوئے میدان میں آنے کا چیلنج کر دیا. ڈیرنگ دے. اس ڈیرنگ کو سمجھنا ہو تبھی حال ہی میں کرناٹکا میں اس بچی کی ڈیرنگ کو دیکھیے گا. 100 لوگ جے شری رام کہہ رہے تھے، اور ان 100 کے جے شری رام کے نعرے کی چھاتی پر، بلکہ اس نعرے کو تکبیر اور رسالت کے جھنڈے کو جس نے گاڑا وہ کوئی مرد نہیں ہے، خاتون ہے. اور 15ویں صدی ہجری میں یہی اس بات کی دلیل ہے خواجہ آپ کے غلام زندہ ہے. جب بھی اٹیک ہوگا نبی مصطفیٰ پر تو مرد باری آئے گی تو خاتون بھی میدان میں نکلے گا. ہندوستان کے سنی مسلمان نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کڈنیپ ہو سکتی تھی، موب لنچنگ ہو سکتی تھی اس کی، مگر جو اپنے دل میں نبی کا عشق بسا لے اسے موت سے کیا ڈرنا ہوتا ہے؟ واہ واہ واہ. بے شک موت سے تو کفار و مشرکین ڈرتے ہیں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. سبحان اللہ. آج بھی غلامان مصطفیٰ ہتھیلی میں سر کو لے کے چلتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. آج بھی میرے بھائی الحمدللہ العظیم ہماری رگوں میں خالد بن ولید کا خون گردش کرتا ہے. سبحان اللہ. صلاح الدین ایوبی کا خون گردش کرتا ہے. ٹیپو سلطان کا خون گردش کرتا ہے. یہ سب ہمارے روحانی پیشوا ہیں، باپ دادا ہیں. ہم بزدل قوم تھوڑی ہیں. مجدد الفسانی جیل میں ہے، 3 لوگ میدان میں نکل گئے. یا تو آزاد کر ہمارے پیر صاحب کو یا میدان میں آ جا. جہانگیر نے بھی سوچا اچھا موقع ہے، کچل ڈالتے ہیں. فوج کے ساتھ، کرو فر کے ساتھ، گھوڑے، نیزے، تلوار، ڈھال کے ساتھ میدان میں آیا. اور تاریخ ہند نے دیکھا زمین گواہ ہے، آسمان شہاد ہے، ستارے درخت ریگستان کے سرکار اس بات پر غماز ہے کہ چند گھنٹوں میں بارود والے نہیں، نیزے والے نہیں، اسلحے والے نہیں، تلوار والے نہیں، پرچیاں والے نہیں، ڈھال والے نہیں، گھوڑے اور ہاتھی والے نہیں، فوج اور لشکر والے نہیں، بلکہ جس نے جنگ کو جیتا ہے وہ اسلام والے تھے، قرآن والے تھے، اخلاق والے تھے، مصطفیٰ کی سنت والے تھے، خواجہ غریب نواز کی محبت والے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
खत लिखा मुजद्दिद अल-फिसानी को, हजरत हजरत पकड़ लिया मैंने, आप कहिए तो गर्दन तोहफे में भेज दूं। मुजद्दिद अल-फिसानी ने खत का जवाब दिया, नहीं, वो और कौम है जो सियासत के लिए मरती है, हुकूमत के लिए मरती है, कुर्सी के लिए मरती है। हमारे बाप दादा में इमाम हसन भी है जो हुकूमत तो खैरात समझ के अमीर मुआविया के हवाले कर देते हैं। हमारे आबा व अजदाद में इमाम हुसैन भी है कि शरीयत के तहफ्फुज के लिए जान भी दे देते हैं। नहीं चाहिए हुकूमत जहांगीर के हवाले कर दो, मगर ये कह दो कि आइंदा अगर एक भी सुन्नत पर आंख उठा के देखी तो आंख को दिमाग से निकाल के बाहर कर देंगे। हुकूमत तुम्हारे हवाले, निजाम मुस्तफा हमारे हवाले। और इस तरह मुजद्दिद अल-फिसानी ने अकबर के दीन इलाही का जनाजा निकाला। अकबर के दीन का खात्मा होता है। हिंदुस्तान अगर आप इसको गौर से देखेंगे 12,69,219 मुरब्बा मील में फैला हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरला से बंगाल की खाड़ी, बल्कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान 712 ईस्वी से लेकर के 1857 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, अगर इससे पहले का हिंदुस्तान देखेंगे तो लोगों को कपड़ा ही पहनना नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, खाना खाने का सलीका ही नहीं था, फिल्टर पानी का सिस्टम नहीं था उसके, नंगे रहने को पीयूष समझते हो। तकवा शरीफ आदमी है, नंगा रह रहा है, यह हाल हिंदुस्तान का। खेती बाड़ी करने का तरीका नहीं उनके पास, स्ट्रॉन्ग निजाम नहीं, जमहूरियत का सिस्टम नहीं, हर ताकतवर गरीब को कुचल डालता था। जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं और निचली जात वाले हैं, उसमें अगर शादी होगी तो दुल्हन पहली नाइट में पंडित के पास जाएगा। यह हिंदुस्तान है। दरिया में भेंट चढ़ाया जाएगा इंसान का, यह हिंदुस्तान है। शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी अगर मुत्तकी परहेजगार बनना चाहती है तो शौहर की चिता पर वो भी जल जाए, यह हिंदुस्तान है। ऐसे माहौल में रब्बे कदीर ने जुल्म और तशद्दुद के खात्मा के लिए श्रीलंका में बहुत सारे मुसाफिर अरब से आए हुए हैं तिजारत करने की गर्ज से। कुछ मर्दों का इंतकाल हो गया तो श्रीलंका के राजा ने डेड बॉडी को 8 बहरी जहाज पर डालकर उनकी औरतों को, बच्चों को, माले तिजारत को और तहाइफ के साथ में उसको अरब की तरफ रवाना कर। रास्ते में सिंध के राजा दाहिर ने उसे किडनैप किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने खत लिखा, और जानते हज्जाज बिन यूसुफ ने कैसे लिखा? जिस वक्त राजा दाहिर उन 8 कश्तियों को पर कब्जा कर रहा था तो उस कश्ती में एक खातून ऐसी भी थी, उसने चिल्लाई, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज। जब कासिद ने ये जुमला पहुंचाया तो हज्जाज ने वहां से कहा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। उसने खत लिखा, औरतों को, तहाइफ को मेरे हवाले कर दो। दाहिर ने मना कर दिया। तब हज्जाज बिन यूसुफ ने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में इंटर किया। ये हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम है। फौज के साथ में जुल्म को रोकने के लिए आए, याद रखिएगा, जुल्म को रोकने के लिए आए, क्योंकि जुल्म कर रहे हैं। जीने का तरीका नहीं, औरतों पर जुल्म, बच्चियों पर जुल्म, गरीबों पर जुल्म। अमीरों के लिए कोई कानून नहीं, गरीबों के लिए तमाम तर धाराएं हैं। इस जुल्म को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर गिरफ्तार होता है, कत्ल होता है, कई किले फतह किए, अपने कैदियों को छुड़ाया। और इस तरीके से तारीख ये बताती है कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में
हिंदुस्तान में इंटर करने के बाद लोगों ने उनके डर से इस्लाम नहीं कबूल किया, बल्कि उनके कैरेक्टर, उनका निजाम, उनका अखलाक, उनकी आदत, उनका अतवार, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका एतदाल, उनकी जजिंग ताकत और पावर को देखकर कुफ्र से तौबा करके हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। ये है हिंदुस्तान में इस्लाम की एंट्री। हिंदुस्तान में दो तरह के लोग थे, एक है खवास और एक है अवाम। खवास में 300 करोड़ देवी देवता, 300 करोड़। हमारे इंदौर की बात है, इंदौर में हॉस्पिटल में डेड बॉडी को चूहे खा रहे थे। लोगों ने इरादा किया कि चूहे को मारा जाए। जब चूहे को मारने लगे तो कुछ लोग आगे, नहीं मार सकते, ये हमारे भगवान, हम इसकी पूजा करते हैं, नहीं मारने दिया गया भाई। ऐसे माहौल, जो भी कोई ताकत और कुव्वत वाला है भगवान। हिंदुस्तान का मिजाज यह है कि भगवान के लिए दो तस्वीर। अच्छा, खवास का यह तरीका नहीं, खवास का कहना यह है कि भागवत गीता के अंदर वासुदेव ने यह लिखा, इन्नी अनल कुल मिन गैर मब्दइन बिविलादतिन औ मुंतही बिवफातिन। मैं कुल हूं, विलादत से मेरी इब्तिदा नहीं है और वफात से मेरी मौत नहीं है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। लेकिन अवाम सुपरमैन और फ्यूज को माबूद समझता। आज भी अवाम का ये तस्वीर, सुपरमैन मैं आपको पूछा, फ्यूज किसको कहते हैं? शरीफ को। जितने शरीफ लोग हैं उसकी पूजा, उसकी नजर में जो शरीफ है उसकी पूजा शुरू कर देंगे। आज भी यही मिजाज है। जब ये अकीदा शबाब पर था कि हर सुपरमैन को लोग खुदा समझ रहे थे और शरीफ आदमी को लोग खुदा समझ रहे थे, परवरदिगार आलम ने 530 हिजरी में ईरान के इलाके सीस्तान के एक गांव संजर में माहे नूर उम्मुल खैर के पेट से, ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से मुईनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज को पैदा फरमाया। वो ख्वाजा जब हिंदुस्तान में इंटर करते हैं तो शराफत, क्योंकि शरीफ लोगों को लोग खुदा समझते थे, पीयूष लोगों को लोग खुदा समझते थे, इनकी शराफत का ये आलम है कि इनका दादा इमाम हुसैन है और नाना इमाम हसन, और 12 वास्तों को बीच से 12 वास्तों के नाम को हटा दूं अगर मैं, तो इनके वालिद का नाम हजरत अली है और माँ का नाम फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शरीफ कोई हो सकता है? शरीफुत तरफ है, नजीफुत तरफ है, फातिमा ज़हरा का दूध जिनकी रगों में, हजरत अली का खून जिनकी बॉडी में, और ये वही फातिमा ज़हरा है जिनकी शराफत का यह आलम है कि मर्द तो मर्द, चांद और सूरज ने भी फातिमा ज़हरा के चेहरा को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी शरीफ माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, इतनी शरीफ माँ, और हजरत अली की साथ इमाम हसन हुसैन का नायब बनकर, शराफत लेकर, जब इनकी शराफत का चर्चा आगे बढ़ा हिंदुस्तान में तो लोगों ने कहा, हम में सबसे ज्यादा आप शरीफ हैं। आई प्रे यू, वी प्रे यू, हम आपकी पूजा करते हैं, नहनु नअबुदुका, हम आपकी इबादत करेंगे। तब मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने कहा, नहीं नहीं, इबादत के लायक वो है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरे साथ मिलकर तुम भी उसकी इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह ख्वाजा ने कलमा पढ़ाना शुरू किया, 1 2 3 4 5। सुपरमैन कहां से आता बताया आपको? सुपरमैन घर के अंदर छत से इंटर करता है, खिड़की से इंटर करता है, प्लेन को रोक देता है सुपरमैन, हवा में उड़ता है सुपरमैन,
पानी को पी जाता सुपरमैन, उसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर से ज्यादा होती सुपरमैन की, और सुपरमैन को इंडिया वाले खुदा समझते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ने मेरे ख्वाजा को कितना बड़ा सुपरमैन बनाया कि वो तो जमीन पर बैठे थे, अपने नालैन के अंदर सुपरमैन का पावर देके हवा में उड़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो नालैन सिर्फ हवा में उड़ा नहीं, बल्कि उसने पहचाना कौन मेरे ख्वाजा का वफादार है और कौन मेरे ख्वाजा का गद्दार। इसलिए मैं कह रहा हूं वो नालैन ही सुपरमैन बन गया, और वो नालैन ऊपर जाके गद्दारे ख्वाजा को मार मार के नीचे उतारा। भाई साहब, नालैन पहचाना कैसे? हमने पढ़ते 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 जंगल के बारे में पढ़ा। शेर भूख लगती है तो ये थोड़ी देखता है कि कौन क्या कहां से चट कर देता है, उसे नहीं पता, बस भूख बुझानी, भूख मिटानी, यही तो फर्क है इंसान में और जानवर में। मैंने एक तकरीर की है कि जानवर को भी भूख लगती है और इंसान को भी भूख लगती है। भूख लगने में मैन लाइक एनिमल, वो जानवर की तरह। फर्क ये है कि वो भूख मिटाने से पहले देखते नहीं कि ये पाक खाना है कि नापाक खाना है, हलाल खाना है कि हराम खाना है। जो नहीं देखता है उसे जानवर कहते हैं, और जो देख के खाता है उसे इंसान कहा जाता है। बुनियादी फर्क, बुनियादी फर्क। शेर ये नहीं देखता कौन है, लेकिन तारीख अरब में, सीरत मुस्तफा में पीर करम शाह अजहरी ने जियाउल नबी के अंदर एक बात लिखी है कि अबू लहब के बेटे ने नबी को गाली दी, माज़अल्लाह। तो नबी ने बद्दुआ कर दी, ए अल्लाह एक कुत्ता इस पे मुसल्लत कर। अबू लहब के बेटे ने सुना तो उसको यकीन हो गया कि यार जिसको मैं बुरा भला कह रहा हूं उसका पावर तो मुझे पता है, तो वो जो बोल देता वो हो जाता है। उसके बेटे की हालत खराब हो गई। अब्बू अब्बू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ दे दी है, मुझे डर लग रहा, वो तो हो ही जाएगा। कहा तू डर मत, सिक्योरिटी देता हूं मैं। और अबू लहब के मानने वालों ने ज़ैड सिक्योरिटी नहीं दी। जंगल में काफिला रुकता है, चारों तरफ से लकड़ी का गट्टा, उसमें आग लगा, उसके बाद इंसान सोए, उसके बाद जानवर को लिया, जानवर के बीच में फिर लकड़ी जमाया, और लकड़ी के ऊपर बहुत ऊंची लकड़ी का ढेर बना करके उसके ऊपर अबू लहब के बेटे को सुलाया। सिक्योरिटी दे दी। कोई आएगा तो किधर से आएगा, आग से निपटना पड़ेगा, जानवर है, हम लोग हैं। मगर जंगल का शेर आया, उसने देखा कहां है गद्दारे मुस्तफा, कहां है गद्दारे नबी, और देखा बीच में जेड सिक्योरिटी है, तो उसने जेड सिक्योरिटी को नहीं छेड़ा, बस दूर ही से अपने आप को सिकुड़ा, और सिकुड़ने के बाद जो जंप लगाया तो सीधा लकड़ी के ढेर पर अबू लहब के बेटे की गर्दन को मुंह में लिया और फाड़ दिया। और उसके बाद आराम से खून पी के वापस, बल्कि खून नहीं पी रहा, पिए का लफ्ज ही नहीं वहां पर। मुझको लगता है उसे भी पता था ये गद्दारे मुस्तफा का खून है, ये मेरे लिए मजेदार नहीं। हाथ डाला और वापस आ गया। पता क्या चला कि नबी जिसके बारे में कह दे कोई जेड सिक्योरिटी नहीं बता सकता। रब जिसके बारे में लिख दे कि इसको मरना है, मिसाइल मैन, AK-47, तो बारूद सब दे दो, मरना है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं मरना है तो 4 गोली 6 फीट के फासले से भी अगर पड़ जाए तो ओवैसी के बाल को भी कोई देखा नहीं करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। के अंदर के मंत्री ने कहा सिक्योरिटी ले लीजिए, हमारी चिंता का संविधान कीजिए। उस मर्द मुजाहिद ने कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, एक ग्रेड का सिटीजन होना दीजिए, मुझे ओरिजिनल हिंदुस्तानी बनना, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्यों
क्योंकि उस मर्द को पता है जब मौत आएगी, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना सअतन व ला यस्तक़दिमून, न एक सेकंड आगे जा सकती है न एक सेकंड पीछे जा सकती है। लिहाजा सिकोट की कोई माना नहीं रख सकती। अगर मौत से बचना भी है तो रब की बारगाह में इस्तिग़ासा करे। रब्बे कदीर, जिसने मौत को पैदा किया, वो अगर कह दे मलकुल मौत इसे 7 साल और दे दे तो कोई मार नहीं सकता, और रब कह दे इसकी रूह अभी निकाल तो कोई माई का लाल उसे बचा नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम उस इस्लाम के फॉलो। शेर ने कैसे पहचान लिया ये गद्दार नबी है? बस ख्वाजा के नालैन ने पहचान लिया ये गद्दार ख्वाजा है। जानवर के अंदर कुव्वते से ठर्राका और मुदरेका कहां से आई? मिन जानिबिल मुस्तफा। और नबी अब नहीं पैदा होंगे। नबी के नाइब ख्वाजा गरीब नवाज है। नबी का खून ख्वाजा की रगों में है। फातिमा का खून ख्वाजा की रगों में है। अली का तेवर ख्वाजा की रगों में है। हुसैन का जलाल सब्र और तहम्मुल ख्वाजा की रगों में है। हाँ हाँ, अबू जहल ने जिस नबी को अबतर कहा था, उस अबतर का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज की बॉडी के अंदर वो ख्वाजा है। नालैन के अंदर कुव्वत तर्राका। जा तू ही पहचान। जब लोगों ने देखा कि ये तो तमाम सुपरमैन के बाप दिखते हैं, खुद नहीं उड़े, नालैन को उड़ा दिया इन्होंने। लोगों ने कहा नहनु नअबुदुका, हम आपकी इबादत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे क्योंकि आप सुपरमैन हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इबादत के लायक वो है जिसने मुझे पैदा किया और मुझ जैसे करोड़ों सुपरमैन को पैदा किया। आओ मेरे साथ मिलके तुम तुम भी उसकी इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यके बाद दीगरे ख्वाजा गरीब नवाज कलमा पढ़ाते गए। किसी ने कहा 5 लाख, किसी ने कहा 9 लाख, किसी ने कहा 99 लाख। मेरे भाई, मुझको तो इतना समझ में आता है कि अगर हम 6वीं सदी हिजरी में ख्वाजा गरीब नवाज है, अभी 15वीं सदी हिजरी है, 800 साल पहले चले जाए, 800 साल पहले चले जाए तो हमारे बाप दादा घंटी बजाए और किसी न किसी की पूजा कर रहे थे। हाँ, वो चूहा की पूजा हो, बिल्ली की पूजा हो, गाय की पूजा हो, सूरज की पूजा हो, आग की पूजा हो, उसको रब की बारगाह में सजदा करने का जिसने तरीका बताया, उस तरीके का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। इसलिए आप लोग घर जाके कलियाचक में इनकलाब क्यों नहीं आता है? 180 देग बने मगर इनकलाब क्यों नहीं आया जानते हैं? क्योंकि हर साल तकरीर सुनने के बाद हा मजा आ गया, इससे इनकलाब नहीं आता। जाने के बाद घर में जो लोग जग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर सो रहे तो सोने दे और सुबह उठते ही उनको बताए, बेटे तुम्हारे परदादा को जिसने कलमा पढ़ाया और बुत के पूजा से बचा करके अल्लाह की पूजा करना सिखाया, उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। ये हर बच्चे 1 साल के बाद बच्चा बोलने लगता है, माँ बाप, 1 साल के बाद भाई बहन बोल, उसी 1 साल की उम्र में माँ बाप बाद में सिखाए, ख्वाजा 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 पहले सिखाए, पहले ख्वाजा ख्वाजा सिखाए। क्योंकि अल्लाह ने ख्वाजा को उस जमाने में सुपरमैन बना के भेजा, और सुपरमैन लोग पूजा कर रहे थे ना। ये आपने अपने उलमा से, मुफ्तियों से सुना होगा, जिस जमाने में जिस ताकत के जरिए इस्लाम को डैमेज किया जाता है, उस ताकत का एक्सपर्ट बना के अल्लाह किसी न किसी नबी को भेजता है। अब नबी के नाइब है। मिजाज देखो, हिंदुस्तान मिट्टी गन्ना निकालती है, काजू भी निकालती है, मिट्टी से किशमिश भी निकलता है, अखरोट भी, पिस्ता भी, टोमेटो भी, पोटैटो भी, मैंगोज भी, ग्रेप्स भी, पपैयाज भी, ये सब मिट्टी से है ना। इसका मतलब मिट्टी सुई भगवान
तो महान। अच्छा, रात में मर्डर करते तो रातों रात मिट्टी खून को ऑब्जॉर्व भी कर देती। मिट्टी महान। कितने रुस्तम सिकंदर को दफन कर लिया मिट्टी। महान। खत्म भी नहीं हो रही मिट्टी। महान। मिट्टी की पूजा शुरू। लेकिन एक आदमी ने क्या किया कि मिट्टी के ढेला को लेके पत्थर से जोर से मारा, तो मिट्टी का ढेला टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर फैल गया। पत्थर नहीं टूटा, तो उसने दिमाग लगाया, ओ वी वर रॉन्ग। मिट्टी कहां ताकतवर है भाई, पत्थर ताकतवर है। मिट्टी को छोड़ पत्थर की पूजा। पहाड़, माउंट एवरेस्ट, हिल, तू ही हमारा भगवान। लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। लेकिन देखा एक दिन क्या कि बड़ी बड़ी चट्टान को पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टान को, पत्थर की चट्टान लोहे की मशीन में डाला, तो लोहे ने उसे पाउडर बना के आटा की तरफ आ गया। तब उसने दिमाग लगाया, ना 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 ना, तू कहां से हो जाएगा पता दे, तेरा बात तो लोहा है। लोगों ने पत्थर को छोड़ लोहे की पूजा शुरू, और आज भी हो रही है, याद रखिए। जितने स्टेप में जाऊंगा वो सब हो रही है। जब लोहे की पूजा शुरू हो गई तो जमाना तरक्की किया, डेवलप किया, और मियां फिल मियां नहीं बल्कि मियां फिल मियां 100 टेम्परेचर से कहीं ज्यादा पर लोहे को रखा गया, तो आग ने लोहे को पिघलाकर पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। तब लोगों ने कहा, ना, लोहा कहां से ताकतवर हुआ, उसे पानी की तरह बहाया तो आग ने, लिहाजा लोहे को छोड़ आग की पूजा शुरू। ऐ आग, तू ही खुदा, हम तेरी पूजा करते हैं। आग, शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। बादल आता है, बारिश बरसाता है, पूरी आग राख का ढेर। लोगों ने दिमाग आया, ना 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 ना, वी आर आल्सो रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। ये बुझने वाली आग की खुदा होती, वो खुदा जो कभी बुझे नहीं, और ऐसी आग मैंने देखी नहीं, इसलिए चल तब्दील करते खुदा को। आग को छोड़ पानी की, गंगा की, यमुना की, समुन्द्र की छठ पूजा शुरू हो। इंसान ने और तरक्की की और दिमाग लगाया, ये बारिश होती कैसे भाई? कहा कि मई जून में सूरज की शुआएं सतह आबे बहर पर अपने पावर का इस्तेमाल जब करती है, तो समंदर के पानी को भी भाप बनकर उड़ने पे मजबूर कर देते हैं। लोगों ने कहा, ना, समंदर भी खुदा नहीं। सूरज, अंतन माबूदुना, तेरी पूजा करते हैं, तू ही हमारा खुदा, यू आर आवर गॉड, हम तेरी इबादत करेंगे। ऐसे माहौल में जब लोग सूरज को माबूद समझ रहे थे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सूरज को सेंटर पॉइंट मानते हैं, आप याद रखिएगा। इस वक्त डार्विन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, फिसागोरिस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक, अफलातून, सुकरात और बुकरात से लेकर अभी तक तमाम साइंसदानों का सबसे बड़ा सज्जारा, मरकज सूरज, दिखने वाला मरकज सूरज। ऐसा जिसने लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा माना, सूरज की पूजा होने लगी। और जब वर्ल्ड में मेजॉरिटी के साथ, और खुसूसन हिंदुस्तान, श्रीलंका समेत, बांग्लादेश समेत, लोग मेजॉरिटी के साथ, नेपाल समेत सूरज की पूजा कर रहे थे, रब्बे कदीर ने 530 हिजरी में जिसकी खातिर सूरज को मकामे सहबा में पलटाया था, जिस अली की खातिर रब ने सूरज को पलटाया था, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सूरज बड़ा नहीं है, अली बड़े हैं, अली बड़े हैं। उसी अली का तेवर, उसी अली का खून, जिस रूह, नफ्स, इल्म, तमाम
ताला सुपरमैन बनाकर रब्बे कदीर ने, क्योंकि लोग सुपरमैन की पूजा करते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन